أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله مولانا العظیم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جہالت اولا کی طرح یا جاہلیت اولا کی طرح، پہلی جہالت کی طرح زیب و زینت کا اظہار کرتے ہوئے نہ پھرو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک و صاف کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور پڑھتی رہو جو کچھ تمہارے گھروں میں اللہ کی باتیں اور عقل مندی کی باتیں اتاری جاتی ہے، یعنی قرآن اور حدیث جو کچھ تمہارے گھر میں دستیاب ہیں، گھر میں رہ کر اس کو پڑھتی رہو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی وہ بہت باریک بین ہے، بھیدوں کے جاننے والے ہیں، خبیرا، اور ہر طرح سے خبردار ہے۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی تلاوت کی سعادت باری تعالیٰ نے مرحمت فرمائی، والحمدللہ علی ذالک۔ سورۃ الاحزاب ہمارا چل رہا ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے علاوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ خاص طور پر آپ کا ادب اور احترام، آپ کے جو حقوق ہے اس سلسلے میں، اس کو بہت تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ گزشتہ چند درسوں سے جو بات پڑھی جا رہی ہے، تھوڑا سا پچھلا میں آپ کے سامنے دہرا دوں تاکہ بات آپ کو ازبر ہو جائے، ذہن میں آ جائے کہ غزوہ خیبر کے بعد، غزوہ احزاب کے بعد، خندق کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ کے محاصرے کا حکم دیا۔ چنانچہ غزوہ خندق کے بعد، احزاب کے بعد بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا، چند دنوں تک وہ محاصرہ رہا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کے فضل سے بنو قریظہ کے جو مرد حضرات تھے ان کو ختم کر دیا گیا، اور ان کے بچوں اور عورتوں کو وہ غلام اور باندی بنا دیا گیا۔ یہ اس وقت کا توریت کا حکم تھا جس پر عمل کیا گیا۔ ان کی بغاوت کی وجہ سے مدینہ میں رہتے ہوئے باہر کے دشمنوں کو مدینہ پر حملے کے لیے تیار کرنے کے لیے انہوں نے جو سازشیں کی تھی اس کی سزا میں انہیں ختم کیا گیا۔ آج کی دنیا میں بھی، آج کے حالات میں بھی، آج کے دور میں بھی یہی ہے کہ کسی ملک کا شہری اگر دشمن ملک کے ساتھ مل کر ملک کے خلاف بغاوت کرے یا ساز باز کرے تو نہ صرف یہ کہ اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے پورے اثاثہ جات کو، اس کے پورے سرمایے کو، اسٹ کو بھی حکومت منجمد کر دیتی ہے، اس پر قبضہ کر دیتی ہے۔ تو یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور آج کی ماڈرن دنیا میں بھی یہی سسٹم ہے کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے دشمنوں کے ساتھ اگر ساز باز کرو گے تو موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے۔ بنو قریظہ نے
मुशरिकीन मक्का को मदीने पर हमले के लिए उकसाया था, और जब वो सब मिलकर हमला आवर हुए थे तो यहाँ मदीने में रहते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुछ वार स्ट्रेटेजी थी, जंगी हिकमत अमली थी, उससे दुश्मनों को आगाह करते रहते थे। चुनांचे गज़वे खंदक के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अभी हथियार न उतारें और सीधा उन लोगों का मुहासरा करें। उनका मुहासरा किया गया, चंद दिनों तक मुहासरा रहा, और वो सारी तफसीलात मैंने आपके गोशे गुजार कर चुका हूँ कि बाद में मर्दों को खत्म कर दिया गया और औरतों और बच्चियों को जो है वो बांदी और गुलाम बना दिया गया। तो उसमें माल गनीमत बहुत सा हाथ आया। उसके बाद गज़वे खैबर हुआ, उसमें भी अल्लाह ताला ने बहुत कुछ माल गनीमत दे दिया। तो उसकी वजह से मुहाजिरीन जो मक्का में सब कुछ अपने असासाजात, सरमायाजात और असेट छोड़ कर आए थे, उनकी माशी जिंदगी और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वो बहुत मजबूत हो गई। मुहाजिरीन के घरों में भी अब चूल्हे बाज़ाब्ता जलने लगे। ये जब कैफियत हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने अल्लाह के रसूल से एक साथ मुतालबा करने का तय किया, और उन्होंने सोचा कि आपस में अलग अलग बोलने से बेहतर है कि हम लोग सब इकट्ठा जमा हो जाएं, हमारी एक इत्तेहाद हो जाए और हम अपने में से किसी एक को स्पोक पर्सन बनाए और वो बात करे। चुनांचे हजरत उम्मे सलमा को स्पोक पर्सन बनाया गया और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, अब तो माल गनीमत भी हाथ आया, मुहाजिरीन के घरों में चूल्हे जल रहे हैं, अब हमारा भी नानो नफका जो है बढ़ जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल बहुत सख्त नाराज हुए, इसलिए कि अज़वाज मुतहरात या आम तौर पर जो शादियां होती हैं उस तरह से शादियां नहीं थी, बल्कि हर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज मोहतरमा का इंतखाब अल्लाह ने अपने तौर पर किया था उम्मत के किसी न किसी मसले को हल करने के लिए। तो इनका इंतखाब उम्मत की इस्लाह के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में इनको कबूल किया गया था। तो अगर ये दुनिया का मुतालबा करते, बहुत आसान था अल्लाह के लिए भी और अल्लाह के रसूल के लिए भी कि इनके मुतालबात को पूरे कर दिए जाते, लेकिन जिस मकसद के तहत इनको हरम नबवी में लाया गया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में लाया गया था, इनका ये मुतालबा उस मकसद से बिल्कुल हट कर हो जाता। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कसम खा दी कि मैं अब इनसे बात नहीं करूंगा। चुनांचे आपने 1 महीने तक उनसे बात नहीं की थी, अलहदगी इख्तियार कर ली थी, अपना बिस्तर अलग कर दिया था, बल्कि मकान अलग कर लिया था, अलग आप रहते थे। ये सारी तफसीलात भी मैं आपको सुना चुका हूँ। फिर उसके बाद आयत उतरी थी जिसमें गुज़िश्ता दर्सों में बताया गया था कि अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ नबी की औरतों, अगर तुम दुनिया चाहती हो तो ऐ नबी इनसे कह दो कि आओ मैं तुम्हें मालो दौलत दूं और तलाक देकर हुस्न अखलाक के साथ रुखसत कर दूं। लेकिन अगर तुम नबी के हरम में रहना चाहती हो, नबी की ज़ौजियत में रहना चाहती हो, तो तुम्हें कैसे रहना होगा। फिर उस सिलसिले में कुछ हिदायत दी गई थी, और आज जो हिस्सा मैंने पढ़ा उसी सिलसिले की मजीद हिदायत है। आज के हिस्से में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज से और मुसलमानों की माओं से फरमा रहे हैं, वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना, क्या नबी की औरतों अपने घर में करार पकड़ी रहो, बिला जरूरत घर से बाहर निकलना, जो चाहे बस घर से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, नबी की औरतों को मना किया गया है। तो आप सोचे कि आम मुसलमानों की औरतों के लिए, आम औरतों के लिए कहाँ इसकी गुंजाइश है। हाँ, जरूरत है, कुछ तकाजा है, कोई बीमार है, उनकी इयादत को जाना है, किसी का इंतकाल हो गया, उनकी तजहीज़ और तकफीन के लिए उनके यहाँ जा रहे, वो अलग चीज है। बीमार है तो दवाखाने में जा रहे, ये अलग चीज है। लेकिन ये है कि हर छोटी मोटी बात के लिए औरतें बाहर जाने लग जाए, ये तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। अल्लाह ताला ने नबी की औरतों से फरमाया कि नबी की औरतों अपने घर में करार पकड़ी रहो, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और पहली जो जिहालत थी नबूवत से पहले, जिसमें औरतें बनाओ सिंगार करके घरों से बाहर निकला करती थी और मर्द उनको ताका करते थे, अल्लाह फरमा रहे कि उस तरह की जिहालत इख्तियार न करो। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नबूवत से पहले की जो जिहालत थी, जो जाहिलियत थी, वो जाहिलियत अगर आज जिंदा हो जाए और इस वक्त की जाहिलियत को देखे तो वो अपने लिए मुंह छुपाने की जगह ढूंढते फिरेगी। इतनी बेहयाई हो गई, आम हो गई है बेहयाई। लिबास ऐसा कि जिस्म के नशीब व फराज, लिबास तो लिबास, लिबास के ऊपर पहने हुए बुर्कों में से भी जिस्म के नशीब व फराज जो है तो जाहिर होते हैं।
कासियात आरियात, जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया था क़यामत की अलामतें में से कि जो कपड़े पहनी हुई होगी लेकिन उसके बावजूद बरह ना होगी। आप देख लीजिए आज कैसे कैसे, यानी कि मर्द जो हैं वो दबीज कपड़ों में होते हैं, पूरा सातिर लिबास पहनते हैं, और औरतें हैं कि वो सतर खुला हुआ है, कोई स्कर्ट पहन रहा है तो घुटने के नीचे का हिस्सा पूरा खुला है, ब्लाउज है तो पेट पूरा खुला है, आस्तीन का तो तस्वुर ही नहीं है, आस्तीन का तो एक बस ये अल्लाह की पनाह। तो अल्लाह तो फरमा रहे कि जो जिहालत पहले थी उस तरह की जिहालत मत इख्तियार करो और अपनी ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करते ना फिरो। वाक़िमनस्सला, और नमाज अदा करती रहो, व आतीना ज़का, और ज़कात देती रहो। औरतों को मस्जिद में जाने से मना नहीं है, अगर वो जाती है तो बिल्कुल जा सकती है, लेकिन उनके लिए बेहतर क्या है, अफजल क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत की नमाज वो घर के सहन में पढ़े, इससे बेहतर है कि वो घर के पिछले वाले हिस्से में रूम में पढ़े, और पिछले हिस्से में भी पढ़े उससे बेहतर है कि घर के बिल्कुल आखिरी कोने में, जहाँ किसी भी गैर महरम की नजर न पड़े। रिश्तेदार जो बहुत से आते हैं, चचाजाद, मामूजाद, फूफोजाद और देवर और जेठ, नमाज की हालत में है, सजदे में है, रुकू में है, या ऐसी हैत होती है कि ये हैत इसके अंदर निस्वानियत का इज़हार ज्यादा होता है, हया इसमें होना जरूरी होता है। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि सबसे कोने वाली जगह ज्यादा बेहतर है। अगर मस्जिद में आना चाहे तो नहीं रोका जाएगा, सेपरेट जगह हो, लेकिन बेहतर क्या है, यानी इसका मतलब है कि अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश ये थी कि औरतें अपने घरों में, और कुरान कह रहे हैं कि अपने घरों में करार पकड़ी रहो, नमाज अदा करती रहो, ज़कात देती रहो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करती रहो। ये सब करोगे अगर तो क्या होगा? अल्लाह ताला फरमा रहे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, नबी के अहले बैत, इन तमाम कामों के जरिए से अल्लाह ताला तुम्हारी गंदगियों को दूर करना चाहते हैं। फिक्री कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी हो सकता है तो उसको दूर कर देगा। वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें पाक व साफ कर देगा। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, और घर में करार पकड़ी रहो तो क्या करो, टाइम पास करो, एक दूसरे की ग़ीबत करो, दूसरों पर तबसरे करो ना। अगर आप घर में हैं तो अल्लाह ताला फरमा रहे वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाह, और याद करो, पढ़ती रहो जो कुछ तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयतें और हिकमत की बातें उतारी जा रही है। मतलब ये कि कुरान को पढ़ो, कुरान पर गौर करो, समझते रहो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, उनकी अहादीस, उनके ऊपर गौर व फिक्र करती रहो। इन्नल्लाह कान लतीफन खबीरा, बेशक अल्लाह ताला बारीक बीन है, अल्लाह ताला भेदों के जानने वाले हैं। इन नहनु अक़रबु इलैकुम मिन हब्लिल वरीद, शहरक से ज्यादा करीब है। इंसान के दिल व दिमाग में जो ख्यालात अभी पैदा नहीं होते हैं, उन ख्यालात के पैदा होने से पहले अल्लाह उनको जानता है। और अल्लाह ताला फरमा रहे कि खबीरा, अल्लाह बाखबर है हर चीज से। तो अब आप सोचे कि नबी की औरतों को, जो मुसलमानों की माएँ हैं और रूए जमीन पर उनसे ज्यादा पाकबाज औरत किसी माँ ने जना नहीं, उनसे ज्यादा पाकबाज औरत, अल्लाह उनके लिए कह रहे हैं कि अपने घरों में करार पकड़ो, आहिस्ता से बात करो। इससे पहले पढ़ चुके हैं कि कोई मर्द अगर बात करे पर्दे की ओर से भी तो उनको करख्त लहजे में जवाब देना चाहिए। आपका नर्म और गुदाज लहजा कहीं उनके दिल व दिमाग के अंदर बात करने के जज्बात को परवान न चढ़ा दे। यहाँ तक तालीमात नबी के औरतों को दी गई। अब आज क्या है, कोई गैर मर्द से बात करो तो आखिरी दर्जे की निस्वानियत और मुलामत के साथ बात कर, और मर्द के साथ तो अल्लाह की पनाह, बेचारा तो कोने में बैठ जाता, इन्हों बोलते रहते उन्हों सुनते रहते। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह का शुक्र है, करम है, फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हम अपने इस तसलसल के ऊपर लौट आए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तसलसल के साथ इसको जारी रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। अब अगर अल्लाह ताला हयात मुस्तआर अता फरमाए, तौफीक शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह आइंदा हिस्सा कल पढ़ेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।